جو کام اللہ کے رسول کے دور میں موجود ہو، بیچ میں کسی نہ کسی وجہ سے بھلا دیا گیا ہو، پھر اسی کام کو اگر کوئی شخص دوبارہ ایجاد کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو اسے بدعت نہیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں احیاء سنہ، کہ ایک سنت مر چکی تھی، اسی سنت کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ لیکن بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے دور میں کوئی کام نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اسی کام کو دوبارہ شروع کیا گیا اور لوگ اسے کرنا باعث فخر، باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اور اس کام کو نہ کرنے پر گناہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنے سے گناہ ہوگا، تو وہ ہے بدعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، یہ شعبان مہینے کا دوسرا خطبہ پیش خدمت ہے۔ آج کا عنوان ہے ماہ شعبان کی بدعات۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے دو سوالات ہیں، ان دو سوالات کے جوابات سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، آسمان بنائے جانے سے پہلے اور زمین بنائے جانے سے پہلے کیا ان دونوں چیزوں کی، ان دونوں مخلوق کی کوئی مثال، کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی نمونہ تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ آسمان بننے سے پہلے اور زمین بنائے جانے سے پہلے اس کی شکل اس طرح کی تھی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک سوال ہے۔ اچھا، دوسرا سوال کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، وہ یہ جملہ ضرور دہراتے ہیں کہ بدعت نہیں کرنا چاہیے، بدعت نہیں کرنا چاہیے، سب دہراتے ہیں، مگر بدعت کا معنی سمجھنا ہوگا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے سوال کا جواب جان لیتے ہیں تو پہلے سوال کا جواب بھی حل ہو جائے گا، اور اگر آپ پہلے سوال کا جواب جان لیتے ہیں، جواب دے لیتے ہیں، تو دوسرا سوال کا بھی جواب حل ہو جائے گا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ آسمان اور زمین بنائے جانے سے پہلے اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا نمونہ کیا تھا؟ جواب کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا کہ آسمان پیدا ہونے سے پہلے ان کی شکل کیا تھی، اور زمین بنائے جانے سے پہلے، زمین پیدا کیے جانے سے پہلے اس کی کیا شکل تھی، کسی کو نہیں پتا ہے۔ اور یہی ہے بدعت، یہی ہے بدعت۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت 110 اس میں بیان فرمایا، بدیع السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کا بدیع ہے، با دال یا عین، بدیع یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور طلبہ جانتے ہیں کہ بدعا یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، اسی سے اسم فاعل بدیع، یعنی اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو، آسمان و زمین کو وجود بخشنے والا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ بدعا یبدعو بداعتن بدعن، یہ عربی کا جملہ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا انوکھا ہونا، بے مثال ہونا۔ تو اللہ نے کہا میں بدیع ہوں، تو مطلب کیا ہوا؟ میں
आसमान और ज़मीन को बेमिसाल बनाया हूँ। यानी आसमान बनने से पहले और ज़मीन बनने से पहले इसकी कोई शक्ल मौजूद नहीं थी कि जिसको देख करके हमने आसमान और ज़मीन बनाया। मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे ना? आसमान पैदा होने से पहले या आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करने से पहले और ज़मीन को अल्लाह ताला के बनाने से पहले इन दोनों चीज़ों की कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई नमूना मौजूद नहीं था। तो जिस चीज़ का नमूना मौजूद ना हो, जिस चीज़ का कोई शक्ल ना हो और उसको अचानक किसी शक्ल से ढाल देना, कोई शक्ल दे देना, यही है बिदअत। जो घड़ी है, जब तक ये घड़ी दुनिया में पहली बार वजूद में नहीं आई थी तब तक ये क्या थी? इसकी कोई शक्ल थी? इसकी कोई सूरत थी? इसका कोई नमूना था? नहीं था। तो जब पहली मर्तबा उस घड़ी को बनाया गया तो इनका नमूना, इनकी शक्ल और इनकी सूरत सामने आई। तो पहली मर्तबा बनना ये बिदअत है। बिदअत इस एतबार से नहीं कि गुनाह है, हम लफ्ज़ के एतबार से समझा रहे हैं कि बिदअत किसे बोलते हैं। पहली मर्तबा किसी चीज़ का ईजाद हो जाना और उसका नमूना, उसकी शक्ल, उसकी सूरत पास्ट में मौजूद ना हो तो उसे क्या कहते हैं? बिदअत। इसीलिए अल्लाह ने कहा बदीउस समावाति वल अर्ज़, मैं आसमान को और ज़मीन को बिना किसी मिसाल के बनाया। मैंने आसमान और ज़मीन को बिना किसी नमूना के, बिना किसी मिसाल के बनाया। तो इसे कहते हैं बिदअत। अब दूसरा जो सवाल था कि बिदअत किसे कहते हैं, जवाब आ गया कि हमारे दीन इस्लाम में कोई नया काम, और नया काम का मतलब क्या? नया काम का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के रसूल के दौर में वो चीज़ थी मगर एक ख़ास दौर तक लोगों ने उसे भुला दिया और फिर बाद में उस पर अमल होना शुरू हुआ, तो ये नया काम नहीं हुआ। तो जो सुनिए, दीन में कोई नया काम गढ़ा गया हो तो नया काम का मतलब क्या हुआ? उस काम की कोई साबका मिसाल ना हो। यानी जिस काम को शुरू किया गया उस काम की कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई नमूना पिछले दौर में, अल्लाह के रसूल के दौर में ना हो तो वो है बिदअत। अगर उसकी कोई नमूना, कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई ना कोई तरीक़ा अगर अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद था लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्तों के लिए, कुछ अय्याम, कुछ सालों के लिए अगर उस काम को लोगों ने छोड़ दिया था, दोबारा वो काम शुरू हो गया तो बिदअत नहीं है। अब मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ। जो पंखे की बात लोग करते हैं ना कि अल्लाह के रसूल के दौर में पंखे नहीं तो ये भी बिदअत है। ये माइक नहीं था, ये स्टैंड नहीं था, ये लाठी नहीं थी, वगैरह वगैरह, और भी कोई चीज़, इस तरह की मस्जिद नहीं बनी थी, इस तरह के कपड़े अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं था, तो ये बिदअत हो गया। मैंने जो आपके सामने बिदअत का जो माना बयान किया है उस माना के तनाजुर में तमाम सवालात के जवाब हो जाते हैं। जवाब क्या है? अल्लाह के रसूल के दौर में ये पंखा नहीं था। क्या हैंड पंखा नहीं था? अल्लाह के रसूल के दौर में ये कपड़ा नहीं था, तो क्या वो नंगे रहते थे? वहाँ के लोग, उस वक्त के लोग नंगे रहते थे, नंगे बदन रहते थे? नहीं, उनके पास भी कपड़ा था। तो उस वक्त कपड़ा था, अभी भी कपड़ा है, तो इसकी मिसाल पीछे मौजूद है ना। उस वक्त भी पंखा था और आज भी है, आज भी पंखा है और यही पंखा उस वक्त भी मौजूद था। ये अलग बात है कि उसकी नौइयत बदल गई। ये मस्जिद, पक्की मस्जिद उस दौर में नहीं थी लेकिन मस्जिद तो थी, इसका तो नमूना मौजूद है ना कि उस दौर में लोग नमाज पढ़ते थे। कहाँ नमाज पढ़ते थे? बाजमात मस्जिद में, चाहे वो मस्जिद कच्ची ही सही, उसमें नमाज पढ़ते थे। तो इस मस्जिद का, इस पक्की मस्जिद का नमूना पिछले दौर में मौजूद है, लिहाजा से बिदअत नहीं कहा जाएगा। इस तरह की टोपी पहनना कि ये टोपी तो अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं था, क्यों पहन रहे, ये भी बिदअत है। मैंने बता दिया बिदअत का माना ये है कि साबका दौर में, पिछले अदवार में उसका कोई नमूना मौजूद ना हो तो बिदअत है। तो इस टोपी का नमूना, इस पगड़ी का नमूना अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद था, उसी की एक अलग शक्ल है, उसी का एक अपडेट वर्जन है, तो इसलिए बिदअत नहीं हुआ। फिर मैं दोहरा देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़,
मैं आसमान और ज़मीन को बिना किसी नमूना के, बिना किसी शक्ल के ज़मीन और आसमान को बना दिया। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इसको क्या किया, ईजाद किया, मैंने इसको गढ़ा, मैंने इसको बनाया। वहाँ पे लफ्ज़ बिदात लाया गया। तो बिदात का माना ये है कि ऐसा कोई दीन का काम दीन समझकर, नेकी समझकर अंजाम देना, जिस काम की नौइयत और जिस काम की हकीकत, जिस काम की शक्ल व शबाहत अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद ही ना हो। आप लोगों ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुना होगा कि अल्लाह के रसूल के वफ़ात के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने और आपके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। तो लोग तरावी की नमाज अलग अलग पढ़ रहे थे, यानी कुछ लोग वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे थे। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम मुसल्लियान को एक इमाम के पीछे कर दिया और कहा कि एक इमाम होगा और बाकी तमाम लोग उनके पीछे तरावी की नमाज अदा करेंगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस काम को देख करके फरमाया, निअमत हाज़िहिल बिदा, ये कितनी अच्छी बिदात है। तो कितनी अच्छी बिदात लुग़वी एतबार से है कि इस काम को अलसरनो शुरू किया गया, कुछ दिन तक लोगों ने बीच में छोड़ दिया था। उसी काम को जो अल्लाह के रसूल के दौर में हो रहा था, उसी काम को दोबारा शुरू किया गया। तो वहाँ पर इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिदा हसना कहा कि कितनी अच्छी बिदात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल के दौर में वो काम हुआ था, अब बीच में बंद हो गया था, फिर उसी काम को दोबारा शुरू कर दिया। तो ये बिदात नहीं हुआ, ये बिदात नहीं हुआ। जो काम अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद हो, बीच में किसी न किसी वजह से भुला दिया गया हो, फिर उसी काम को अगर कोई शख्स दोबारा ईजाद करता है, शुरू करता है, तो उसे बिदात नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं इह्या सुन्ना, कि एक सुन्नत मर चुकी थी, उसी सुन्नत को दोबारा ज़िंदा किया गया। लेकिन बिदात का माना ये होता है कि अगर अल्लाह के रसूल के दौर में कोई काम नहीं था, उसका कोई वजूद नहीं था, उसी काम को दोबारा शुरू किया गया और लोग उसे करना बाइसे फ़ख्र, बाइसे अजर सवाब समझते हैं और उस काम को ना करने पर गुनाह समझते हैं कि नहीं करने से गुनाह होगा, तो वह है बिदात। अब जो ये टोपी है, अगर हम टोपी खोल दें तो क्या हमें कहेंगे कि टोपी ना पहनने से गुनाह होगा? अगर ये कुर्ता ना पहन करके शर्ट पहन ले तो क्या कोई ये कह सकता है कि नहीं शर्ट पहनना गुनाह है और कुर्ता पहनना नेकी काम है? कोई नहीं कहेगा। क्यों? इसको हम लोग दीन नहीं समझते हैं, इसको हम लोग दीन तसव्वुर नहीं करते। लेकिन शाबान के महीने में जो बिदअत राइज है, उस काम को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको गुनहगार ही नहीं बल्कि आपको गुस्ताख रसूल कहा जाएगा। अगर आप 15वें शाबान को कब्रों की ज़ियारत का एहतमाम नहीं करते हैं तो आप गुनहगार ही नहीं बल्कि हसन हुसैन उसके नाना सब के दुश्मन हैं आप, बल्कि आप मज़हब इस्लाम से खारिज हैं। ये लोगों का अक़ीदा बना हुआ है, तो इसे कहते हैं बिदअत। लेकिन अगर कोई शख्स बिरयानी खा रहा है तो उसे बिदअत नहीं कहा जाएगा, उसे बिदअती नहीं कहा जाएगा। अगर कोई शख्स सत्तू घोल के सत्तू पी रहा है तो उसे बिदअती नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? इसलिए कि खान पान की शक्लें अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद थी, और आज अगर कोई खान पान की शक्लें अलग अलग डिश बनाता है तो ये बिदअत नहीं होगा, क्योंकि इसका नमूना पीछे मौजूद है। अब 15वें शाबान को जो काम लोग अंजाम देते हैं, जो काम करते हैं, कि इन कामों की कोई शक्ल अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद है? अगर मौजूद होगा तो उसे बिदअत नहीं कहेंगे। अगर मौजूद नहीं होगा और उस काम को नेकी समझ करके और ना करने पर गुनाह समझा जाए तो उसे कहते हैं बिदअत। तो 2 सवाल था, दोनों सवाल का जवाब आ गया। तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों ने बिदअत का माना सही तरह से समझ लिया होगा।